Hello students and welcome to your computer class. Well, today it's our revision class and it's your query time also. Well, in this video we will discuss the remaining portion of our first chapter. It means in this video we will discuss the types of digital computers जो last turn पे हम लोग cover नहीं कर पाए थे. Fine. Now what we have to do is फटाफट से we have to discuss this term. Then you will get some time to comment down or to give all your queries in that WhatsApp group only. Fine. मतलब क्या करना है, आज तुम लोगों को अपनी सारी queries ग्रुप में पूछनी है मुझसे, and then after that we will discuss all the queries in the discussion time of that particular query session. Fine. So it means इसके just बाद यानी वीडियो देखने के just बाद ग्रुप में जाना और query अपनी पोस्ट करना स्टार्ट कर देना. Fine. Now let's start. Well, in our digital computers we have 5 categories: embedded computers, microcomputers, mini computers, mainframe computers and supercomputers. Fine. Well, first we have to discuss about this term, that is embedded computers. अब ये क्या होते हैं भाई, कि सारे embedded computers वो tiny circuit chips हैं जो कि हमारे computers में computers बोला मैंने, ये embedded computers वो सारे tiny chips हैं जो कि हमारे appliances में, electric appliances में पहले से ही inbuilt होती हैं. For example, some electronic chips in our televisions, that smart circuit board that we have in our washing machines, in our refrigerators, in our smart watches. Fine. So all these circuit chips are termed as embedded computers. Fine. वो सारे circuit chips जो इन सारी appliances में या machines में पहले से ही fixed होती हैं, programmed होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं embedded computers. Fine. First thing. Second most important thing, इस embedded computer की programming को we cannot change. Fine. We cannot change the programs of these embedded computers, and these embedded computers are generally specific purpose computers. कैसे computers होते हैं ये बेटा? These are some specific purpose computers. मतलब इसको हम लोग हर चीज के लिए use नहीं कर सकते हैं. Now let's move to a second category, that is microcomputer. Well, microcomputer is also known as personal computers. को हम लोग personal computer भी कहते हैं. Fine. मतलब वो सारे computers that we can hold in our hands. Fine. That we can carry in our pockets, such as our smartphones, our tablets, our laptops, and the computers that you have in your homes, in your schools, like your desktop computers. Fine. All these computers are termed as microcomputers. Fine. ये सारे computers होते हैं हमारे microcomputers, और ये microcomputers जनरल पब्लिक के थ्रू जनरल पर्पस में यूज होते हैं, यानी ये computers डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं. Fine. Well, in all these computers we have a microprocessor chip, यानी हर एक कंप्यूटर में एक CPU भी अवेलेबल होता है. Fine. Now because in these computers we only have one CPU, we only have one microprocessor. इसमें क्या होता है, सिर्फ एक माइक्रोप्रोसेसर होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर. ओके. प्लस इन सारे ही कंप्यूटर्स में सारी फैसिलिटीज होती हैं, लाइक वी हैव स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एवरीथिंग. मतलब हमारे घर के कंप्यूटर्स में लाइक लैपटॉप और डेस्कटॉप्स में सारी चीजें होती हैं ना. सो दैट्स व्हाई दीज कंप्यूटर्स आर टर्म्ड एज माइक्रो कंप्यूटर्स. नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज मिनी कंप्यूटर्स. ये मिनी कंप्यूटर्स क्या है भाई? अभी मैंने बताया कि भाई माइक्रो कंप्यूटर बने हैं सिर्फ एक पर्सन के यूज के लिए. फाइन. मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर्स हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर है और उसको एट अ टाइम ओनली वन यूजर कैन यूज इट. फाइन. अब सपोज करो मैंने बोला किसी फैक्ट्री में एक मशीन है, वो मशीन क्या कर रही है, उस मशीन के 4 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिन्हें मुझे मैनेज करना है. तो उसके लिए मैं एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज या एक माइक्रो कंप्यूटर का यूज नहीं कर पाऊंगा. फॉर दैट आई नीड अ मशीन विच कैन हैव मोर प्रोसेसर्स. मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जिसमें ज्यादा प्रोसेसर्स हो. फाइन. सो फॉर दैट वी कैन यूज मिनी कंप्यूटर्स. अब ये मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं भाई? ये मिनी कंप्यूटर्स थोड़े से बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स से. फाइन. इसमें ज्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं, एंड दीज कंप्यूटर्स कैन हैंडल और कैन मैनेज अप टू 200 यूजर्स. यानी मिनी कंप्यूटर्स को कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 200 यूजर्स, 200 यूजर्स एट अ टाइम यूज कर सकते हैं. ओके. अब ये मिनी कंप्यूटर्स यूज होते हैं बेसिकली कुछ स्पेशल जगहों पर, जैसे कि बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए. फाइन. जैसे कि हम लोगों के मॉल्स में. फाइन. Then for accountancy work, these are used in banks also. Fine. And these are also used for inventory management. Now our next term is mainframe computers. अभी mainframe computers क्या होते हैं भाई? ये mainframe computers बड़े होते हैं in compared to our mini computers, यानी इसकी capacity ज्यादा होती है. Fine.
Now, these mainframe computers are designed to support hundreds or thousands of users at a time. Fine. मिनी कंप्यूटर्स एक बार में हैंडल करता था 200, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर थाउजेंड्स या उससे भी ज्यादा यूजर्स को एट अ टाइम हैंडल कर सकते हैं. फाइन. इट मींस वो सारे कंप्यूटर्स जिनमें हमारी वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फाइन, इन सारी वेबसाइट्स के सर्वर्स का मतलब कौन से कंप्यूटर में बने हुए हैं, वो सारे सर्वर्स बने हुए हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में. फाइन. नाउ अब ये कंप्यूटर्स क्या करते हैं भाई, दीज कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस वेरियस थिंग्स एट अ टाइम एंड साइमल्टेनियसली. फाइन. एंड दीज आर जनरली यूज्ड इन बिग थिंग्स सच एज इन बैंकिंग इंडस्ट्री. फाइन. बैंकिंग इंडस्ट्री का वो एंड जहां पर कस्टमर्स और एम्प्लॉइज एक पोर्टल पे वर्क करते हैं, इट मीन्स हमारी ई बैंकिंग फैसिलिटी वो होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के थ्रू. फाइन. लाइक इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय बिग सोशल नेटवर्किंग कंपनीज. फाइन. जितनी भी बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनीज होती हैं वो भी किसका यूज करती हैं भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करती हैं. टेलीकॉम सेक्टर किसका यूज करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करता है. फाइन. और वो सारी जगह है जहां पर हम लोगों को वी हैव टू वर्क विद बिग डेटा एंड वी हैव टू वर्क विद a high volume of data. There we use these mainframe computers. Now our last term is supercomputers. Supercomputers name से ही clear हो रहा है, ये सबसे सुपर है, सबसे बड़े हैं. Fine. Well, these computers are the biggest and the fastest computers available. सबसे बड़े computers available हैं. Fine. Well, these computers can process a huge amount of data. Well, we can say that these computers can process up to a trillions of instructions in a second. Fine. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियन और बिलियन, मैंने कहा कि ये कंप्यूटर एक बार में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं. फाइन. अब देख लेना भाई ट्रिलियंस में कितने जीरो होते हैं. फाइन. इन दी सुपर कंप्यूटर्स वी हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स कनेक्टेड. इसमें बहुत सारे हजारों प्रोसेसर्स चिप्स लगी होती हैं. सोचो हमारे एक हाई एंड कंप्यूटर्स में, हमारे एक गेमिंग पीसी में सिर्फ एक प्रोसेसर होता है. फाइन. और उसमें हम लोगों को कितना हाई फ्रेम रेट मिलता है. अब सपोज करो एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें उस सिमिलर कैपेसिटी के हजारों सीपीयूज लगे हों, तो वो कितना फास्ट हो गया. फाइन. उसकी कैपेसिटी कितनी हाई एंड होगी. तो ये कंप्यूटर्स अब बिकॉज इनकी कैपेसिटी इतनी हाई एंड है, मतलब ये नॉर्मल पब्लिक के किसी यूज के लिए नहीं होंगे. फाइन. अगर तुम बेटा इन कंप्यूटर्स में गेम खेलोगे तो तुम इन कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज को वेस्ट करोगे और ये कंप्यूटर्स कुछ ही देर में खराब हो जाएंगे. फाइन. वेल, that's why these computers are used in some special things only. Fine. ये कहाँ पर यूज होते हैं भाई, ये यूज होते हैं साइंटिफिक रिसर्चेस में. फाइन. जहां पर इन लोगों को बहुत सारे डेटा को एट अ टाइम प्रोसेस करना होता है. फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स. फाइन. जितने भी कंप्यूटर सैटेलाइट लॉन्च में यूज होते हैं, सैटेलाइट्स को कंप्यूटर कंट्रोल करने में यूज होते हैं. फाइन. मिसाइल्स को कंट्रोल करने में यूज होते हैं. ऑल दीज कंप्यूटर्स आर सुपर कंप्यूटर्स. फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर. Well, first supercomputer was made by Roger Cray in 1976. Fine. और ये सुपर कंप्यूटर्स मोस्टली यूज होते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, साइंटिफिक सिमुलेशंस में, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्चेस में और बहुत सारी चीजों में. फाइन. सो इट वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू गाइस, you have to revise the notes of this chapter once very carefully. If you have any doubt in the notes, then you can comment down everything in the group or in the comment section. And after revising the notes, अगर कहीं पे कुछ doubt है तो you can refer to the book. Else, for doubts, you can watch all these videos multiple times and that's it. Fine. So till then, keep learning, stay safe, stay healthy, and thanks for watching this video.